Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. In this video, we are going to discuss references of UPSC Prelims 2025 current affair based questions from the compilation of 12 months that I had provided you, and one more thing, provided you timely on my Telegram channel. Okay, so without wasting any time, let us look at the references wherein I'll provide you not only the question number from set B, but also their answer. We'll discuss the answer and I'll also provide you relevant screenshot from the notes to explain you कि कैसे उन notes को आप use करके directly या indirectly answer को निकाल सकते हैं. ठीक है, so first thing first, there are 37 questions that can be answered from the notes that I had provided, the 12-month compilation, not the 10-month. 12-month compilation से you can answer 37 questions. 28 are fully solvable एंड 9 आर पार्शली सॉल्वेबल. तो मैंने 28 पे ही फोकस करता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि 37 सॉल्व हो रहे हैं, बट 28 यू कैन फुली सॉल्व एंड 9 यू कैन पार्शली सॉल्व, एलिमिनेट वगैरह कर सकते हो, वो देखेंगे क्या है. ठीक है, सो आई हैड पोस्टेड दिस कंपाइलेशन ऑन 10th May on my Telegram channel, and the 10-month compilation, I guess I had posted somewhere around 16th or 17th April itself. So there was enough time that I had provided to every aspirant so that they can go through the compilation and make use of it. Now question number 7. So we'll firstly discuss the fully solvable question. It is on Majorana. That is the chip, Microsoft जो chip लाया था. अब इसका टाइटल देखो क्या लिखा है, Microsoft Majorana 1 chip. एंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड स्टेटमेंट में, मेजोराना कौन लाया, AWS. न्यूज पढ़ने की भी अंदर जरूरत नहीं है, अगर बस ये टाइटल पढ़ लिया तुमने, मेजोराना चिप 1 किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की, यू वुड हैव बीन एबल टू एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 हट गया यहां से, उसके बाद आंसर आ गया तुम्हारा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी. यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मैटर्स ऑफ 5 और 6 सेकेंड्स. बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम मिल जाता, जस्ट इतना पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट लाए. ठीक है, एंड दिस वाज मेंशन्ड ऑन page number 472 of the compilation. Those who want to check, those who want to verify, those who do not trust me what I am saying, compilation available है, जाके check कर सकते हो. Second question, that is question number 9 from the set B, was on viruses. तो क्या लिखा है, no virus can survive in ocean waters, no virus can infect bacteria, and transcriptional activity host में नहीं होती. अब पढ़ो पेज नंबर 479, कंटेंट अबाउट वायरसेस. तो यहाँ क्लियर लिखा है, आई एम नॉट श्योर ये आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, मे बी नाउ यू कैन सी दैट. सो वायरसेस आर फाउंड इन एवरी एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर. ये यहीं खत्म हो गया एक स्टेटमेंट. वायरसेस इन्फेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया. एंड रेप्लिकेशन आई हैव डिस्कस्ड वेयर इन वायरसेस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं और फिर कैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसे रेप्लिकेट करके. दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. सो आंसर इसका नन है, दैट इज ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. यहां लिखा है नो वायरस कैन डू दैट. सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर बेसिकली रॉन्ग, वायरस ये सब कर सकता है, एंड यू कुड हैव इजीली आंसर्ड इट फ्रॉम द नोट्स. Then question number 13 of set B basically talks about Earth rotation and axis. Changes in the rotation, changes in the axis because of polar ice melt. तो क्या लिख रहा है, Scientific studies suggest that shift is taking place in Earth's rotation and axis. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको वैसे भी पता होगा, आई होप. अगर करंट अफेयर नहीं भी पढ़ी है तो पता होगा, अदरवाइज इन द कंपाइलेशन ऑन पेज नंबर 114 it was clearly mentioned polar ice and days length. Earth's axis is shifting due to polar ice melt causing long-term changes in the rotation and the axis is also changing. ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन नोट्स में. Next, solar flares and associated CMEs bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. पेज नंबर 458. ऑफ कोर्स दो रेफरेंस क्यों है, क्योंकि दूसरा एक अलग ही क्वेश्चन है, एक पोलर आइस मेल्ट पे था, एक कोरोनल मास इजेक्शन, दैट आल्सो आई हैड कवर्ड ऑन पेज नंबर 458 एंड 459, जिसमें क्लियर लिखा है कि कोरोनल मास इजेक्शन जो होते हैं ओजोन लेयर एटसेट्रा को इंपैक्ट करते हैं. तो आप उससे कॉम्प्रिहेंड करके कर सकते हो कि आउटर मोस्ट लेयर जो अर्थ की है वो इंपैक्ट हो रही है. एंड देन द थर्ड स्टेटमेंट वाज, एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर. नाउ दिस इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड हियर, दिस इज कोर एनालिटिकल पॉइंट फ्रॉम ज्योग्राफी कि पोलर आइस मेल्ट हो रही है,
डेंसर वाटर है, मूव कर रहा है नीचे, तो इक्वेटर वाटर इक्वेटर की तरफ जा रहा है. सो बेसिकली आंसर इसका बी है कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्चुअली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. सीएमई तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा ना, अर्थ रोटेशन और एक्सिस को. सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज बेसिकली able to explain statement 1, and hence answer of this statement is B as per me. Article 6 पे क्वेश्चन आया था, पेरिस एग्रीमेंट, क्वेश्चन नंबर 14. नाउ ऑन पेज नंबर 397 ऑफ कंपाइलेशन आई हैव कवर्ड कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म, आर्टिकल 6 यूएन, जो कॉप 29 हुआ था अजरबैजान बाकू में. सो दे हैड इनिशिएटेड दिस प्रिंसिपल कि अब यूएन के तहत मैनेज करा जाएगा आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का. एंड हियर इट इज क्लियरली मेंशन that it outlines principles with respect to carbon market, and then inter country, जो स्टेटमेंट 3 है कि इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज इसमें टारगेट होती हैं. यहाँ वर्ड देखो हमने क्या यूज करा है, अलाउइंग कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट अमंग देमसेल्व्स, दैट इज इंटर कंट्री कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म. तो अगेन अ क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन easily answered from the notes that were provided. Question number 18 of set B was a bit complex because क्योंकि एक factual detail पूछी थी कि CO2 per emission, what is the amount of CO2 per emission. यहाँ बोला है it is in India it is less than 0.5 tons CO2 per capita. Notes में I had made a specific topic that is reports on climate change. So why I changed the title of the topic was कि जितनी रिपोर्ट्स मिली मुझे मैंने एक ही जगह पे डाल दी, so that this will help you in mains as well. ये मत सोचना ये प्री हो गया, कंपाइलेशन वेस्ट हो गई. This is going to help you in mains as well. So reports on climate change on page number 389 it clearly mentions कि इंडिया का पर कैपिटा टन जो है एमिशन कितना है 0.6. ठीक है. नाउ दिस एलिमिनेट्स स्टेटमेंट नंबर 1. स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट होते ही तुम्हारे पास ऑप्शन के बचते बी एंड सी. तो 2 तो करेक्ट हो ही गया. अब वो पता हो ना पता हो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें. मैटर बस करता था स्टेटमेंट नंबर 3. दैट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया. इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है कि थर्मल वेस्ट पावर प्लांट है हमारे 60% कुछ हमारे थर्मल पावर प्लांट से आती है इलेक्ट्रिसिटी, वो कोल बेस्ड है, तो ऑफकोर्स CO2 प्रोडक्शन उससे ज्यादा होगी. सो आंसर as per me of this question is C, that is 2 and 3, and could have been easily answered once you eliminated statement number 1 from the notes. Then question number 26, हिस्ट्री का क्वेश्चन तक सॉल्व हो रहा है. करंट अफेयर के नोट से हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ए मैप का कैसे हो रहा है देखो. क्या बोला है कि श्री विजया किंगडम थी, ठीक है, विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एटसेट्रा. तो किसने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन करा. Now I had taught in places in news that Port Blair was changed, was renamed as Sri Vijayapuram, and it is known for Chola Empire strategic naval base under Rajendra Chola I. इसको यूज करके ही as simple as that you could have answered this question कि श्री विजयपुरम उसका नाम रखा गया है, जो नेवल बेस किसका है, चोला राजा 1 का. वहां से आप ये आंसर कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 31 ऑन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट. आई हैड टॉट 3 कैटेगरीज ऑफ AIF, कैटेगरी 1, 2 एंड 3, जिसमें क्लियरली हमने कैटेगरीज मेंशन करी हैं इन विच बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर नॉट मेंशन. हेज फंड्स मेंशनड है, वेंचर कैपिटल मेंशनड है. लाइक कैटेगरी 1 हैज वेंचर कैपिटल, सोशल वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स. कैटेगरी 2 है डेट फंड्स. कैटेगरी 3 हैव हेज फंड्स यूजिंग लेवरेज. ये स्टेटमेंट बताओ जो पेज नंबर 316 पे लिखी है. यू कुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34, आई एम वेरी प्राउड टू क्लेम दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय नोट्स. ये मैंने डाला था फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एथिक्स. सो आई हैड 2 कोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स. वन वाज फॉर one that started in October 2024. Similarly, we are starting another batch for 2026 in October. The link of same is available in the description. So I had kept this news with respect to mains, but then I taught this in prelims batch as well, जो हमने prelims revision का part भी बनाया था. So ESG ratings basically deal with environmental, social and governance rating. ये SEBI framework लाया है, that is BRSR. क्वेश्चन में लिखा है RBI ये फ्रेमवर्क लाया है, ठीक है. सो दिस डज नॉट बेसिकली डील्स विद
financial submissions but non-financial submissions in nature, that is environmental, social and governance disclosures. तो पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, देखते कि आरबीआई नहीं लाया, सेबी लाया, और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स है, वेरी इजली आंसरेबल फ्रॉम द नोट्स. क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, एंड आई हैड प्रेडिक्टेड दिस क्वेश्चन. मैंने बोला था क्लास में कि क्रिटिकल मिनरल्स पे आना ही है, एंड आई एम श्योर many of you would agree, many of you would have watched the videos and all, या notes कभी देखे हो, या जो मैंने YouTube पे जो videos करी थी, and if you agree with me, please do mention in the comment section as well, because I am 100% sure there will be a number of negative comments on this video as well. जो लोग बोलेंगे जबरदस्ती claim कर रहे हैं, ठीक है, I know what happens. So India has joined Mineral Security Partnership. Clearly it is mentioned on page number 103. Then India is resource-rich country in all 30 critical minerals that it has identified. No, क्योंकि हमने clear बोला है India is completely dependent on imports for 10 critical minerals. It is mentioned again on page, same page, that is 103. तो इस statement से ही you can easily eliminate statement number 2, and that will give you the answer. That is C. 1 and 3 are the correct answer. Question number 38. India accounts for very large portion of equity option contracts. बहुत बेसिक क्वेश्चन है वैसे, आई एम नॉट श्योर इतने टफ पेपर में ये क्वेश्चन क्यों आया. स्टेटमेंट देखो, थर्ड, there is no regulatory body either to warn small investors about the risk of option trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. Of course, logic भी लगाओगे तो पता चल जाएगा ये wrong है, but even this was covered in the notes. That is the directive of SEBI on the financial influencers, page number 336. So SEBI has directed brokers and mutual funds to discontinue use of unregulated financial influencers for advertising. And this could have easily told you that statement number 3 is wrong. Question number 44, that is turmeric. I am very proud to mention this question. We had 4 lines on turmeric in our notes and 3 statements can be answered from that. कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पूछा है इन्होंने, हमने बताया 70%, अब लार्जेस्ट हो गया ऑफ कोर्स अगर 70% प्रोडक्शन है. तेलंगाना प्लेइंग अ की रोल, दैट इज मेंशन इन द स्टेट्स के तेलंगाना मेजर स्टेट्स में है, एंड मोर देन 30 वेराइटीज, which is mentioned that about 30 varieties are grown in 20 states in India. So all of the 3 statements can be answered from, again, from the notes mentioned on turmeric on page number 387 of the compilation. The link, I must tell you, of the compilation is available in the description section for whoever who wants to verify even now. BIMSTEC के 7 members हैं, ठीक है, 7 मेंबर स्टेट्स लिखे हुए हमने. ढाका डिक्लेरेशन कह रहा है नहीं, इट इज बैंकॉक डिक्लेरेशन. सो स्टेटमेंट नंबर 2 कट गई यहां से. स्टेटमेंट नंबर 2 कटते ही व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर लेफ्ट विद यू? 1 and 4 and 1 ओनली. एंड आई हैव मेंशन द सेक्टर्स एज वेल कि सब सेक्टर कौन सा है, टूरिज्म 14 सब सेक्टर्स कौन से. सो अगेन दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन आंसर्ड फ्रॉम द नोट्स. 55, AI एक्शन समिट. So India co-chaired with Paris, लिखा हुआ है यहाँ पे, in Paris, India and France co-chaired the AI Action Summit. Then second question के ब्लेचले पहले हुआ था और सियोल हुआ था, that is also mentioned. First meeting in Bletchley, second meeting in Seoul, that is mentioned on page 157. And the second statement that US and UK also signed the declaration. No, I have clearly mentioned it. So India, China, Brazil, France, Australia signed a joint statement. There is no reference of US and UK. That should have made it clear. इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए था कि यार सर भूल गए होंगे शायद लिखना. नहीं, क्यों भूलूंगा भाई, अगर करो होता तो मैं लिख देता. So it makes it evidently clear that statement number 2 is wrong. Question 57, BRICS. I am sure every educator would have predicted this question कि आना ही है, मैंने भी करा था ये. So 16th BRICS summit रशिया में हुआ है, कजान में. Very easily answered here on page number 177. Indonesia has become a full-time member. Right, Indonesia has become member. Third statement. Now, let me also admit here that I was lucky with respect to this question. ये third statement जो है theme, that is not part of my notes. अगर ऑप्शन ऐसे होते 1, 2 and 3 का ऑप्शन होता, फर्स्ट जाता है क्वेश्चन.
नहीं हो पाता नोट से, बट ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में 1 2 एंड 3 है ही नहीं, उससे पता चल गया मुझे ये दोनों चीज तो नोट्स में थी, तो 1 एंड 2 इज द आंसर, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 3 में पता है क्या गलती है, एंटायर थीम इज राइट, इट इज नॉट मल्टीकल्चरलिज्म, इट इज मल्टीलेटरलिज्म। So UPSC has played on such levels this year. The paper was very tough. When you read between the lines, then you will understand कि पेपर बहुत टफ था। जिन लोगों ने प्रिपेयर नहीं करा वो लिख रहे हैं ना पेपर आसान था, आपने प्रिपेयर करा होता और अटेम्प्ट किया होता तब आपको पता चलता पेपर वाज वेरी टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इवन पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस वर कवर्ड इन द नोट्स। ठीक है, स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पार्टी इमीडिएटली, मैंने क्लियर मेंशन करा हुआ है कि ये ब्रिटिश ट्रेडिशन में होता है, इंडियन ट्रेडिशन में नहीं होता है ये। सो वुड हैव इजीली एलिमिनेटेड स्टेटमेंट नंबर 2 एंड देन ओनली 2 स्टेट, दैट इज सी ऑप्शन इज लेफ्ट फॉर यू 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एंटी डिफेक्शन, क्वेश्चन नंबर 68। सो प्रेसिडेंट लिखा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट डिसीजन है, क्लियरली मेंशन स्पीकर का डिसीजन होता है। वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हो सकता है वो? अगर 10 शेड्यूल में स्प्लिट और मर्जर की बात करी है, किससे स्प्लिट और मर्जर होता है? पॉलिटिकल पार्टी से। सो इट क्लियरली सेज पार्टी मेंबरशिप, merger with a party, yes, split with a party, so political party is mentioned after the amendment. ठीक है, so again could have been answered from here. NRL was a direct reference के EU ने NRL law लाया, पेज नंबर 408. So anybody who has even read this distantly would have been able to save huge amount of time here. ये तो 2-3 सेकंड में मार्क करो और आगे बढ़ती होना ही, ऐसा क्वेश्चन था। 71, I was shocked myself, ये मुझे याद नहीं था कि मेरे नोट्स में फॉर्मूले भी लिखे हुए, बट देयर इज अ टॉपिक इन द नोट्स दैट कवर्स बजट फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो बजट फॉर्मुलेशन में मैंने फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूलाज प्रोवाइड करे थे। जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूलाज मेंशन ऑन पेज नंबर 368, you would have easily solved this question. Similarly, there is another question on budget deficit, again the same reference I'll use। 72, INSTC किस कंट्री से किसको ज्वाइन करता है? सो छाबहार, I had made prediction video as well. One video I had done, I had did one video and then I had given the predictions for from the on my blog, that is Mudit Jain blog. So I had predicted 207 topics and would you believe it, 17 questions came from those 207 topics. वो अवेलेबल है ब्लॉग पे, अनएडिटेड अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हो। 3 प्रेडिक्शंस करे थे 3 डिफरेंट सेट्स में, मैंने तीनों में मिला के यू कैन इजीली आंसर 17 क्वेश्चंस एंड वन ऑफ द प्रेडिक्शन वाज छाबहार, क्योंकि इतना कुछ हुआ है। ईरान के आई गेस प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी और फिर हमारी तरफ से वहां गए थे, तब छाबहार पे बहुत आर्टिकल आए थे। सो छाबहार स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, INSTC को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया एंड रशिया से, बाय पाकिस्तान कुड हैव बीन इजीली आंसर्ड यूजिंग दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इथेनॉल पे क्वेश्चन आया था। देखो क्या लिखा है, ब्राजील एंड यूएस प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल, फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन द लेटर। फॉर्मर कौन है? ब्राजील, ये लिखा है इन्होंने। मैं जनरली डायग्राम्स वगैरह नहीं डालता हूं अपने नोट्स में, आप लोगों ने अगर कंपाइलेशन पढ़ी हो, बट दिस डायग्राम आई हैड क्योंकि इंफॉर्मेटिव है। अब यहाँ लिखा हुआ है यूएस प्रोड्यूसेस 55%, ब्राजील प्रोड्यूसेस 27, उसी से आंसर हो गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ये देखते ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 2 3 वाले, ये देखते ही मुझे पता चल गया दैट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, इट इज मेंशन ऑन पेज 344 एंड देन you could have easily answered that statement 1 is not correct, D आंसर है इसका। 74th क्वेश्चन, वेट बल्ब। भाई कौन कौन अब तक वीडियो देख रहे हैं? आई एम नॉट श्योर, काफी लोग चले गए होंगे। अगर रिटेंशन है, अब तक वीडियो देख रहे हो, अगर याद है, आई हैड प्रिडिक्टेड दिस लाइव इन क्लास। मैंने क्या बोला था? आई इवन रिमेंबर माई वर्ड्स, दिस इज माई गट फील कि वेट बल्ब आएगा। आई हैड नथिंग टू बैक इट एंड आई हैड ऑल्सो टोल्ड दैट मेरी इंटेंट, मेरा जो गट फील है, इंट्यूशन है, वो सही होता है, और वही हुआ यहाँ पे। सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वेट बल्ब टेम्परेचर। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। It does not relate to global warming, climate change as such. It talks about heat stress in direct sunlight.
जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सन एंगल, क्लाउड कवर, सोलर रेडिएशन एक्सेट्रा मैटर करता है। तो क्या ये फैक्टर्स जो हैं, कैन इट इम्पैक्ट रेनफॉल, फ्लडिंग एंड ड्राउट, साइक्लोन्स इन पेनिनसुलर इंडिया? आई थिंक नो। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, आई थिंक नो। सो द आंसर एज पर मी शुड बी दैट यू विल एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट नंबर 1। और दूसरा यहां पे लिखा है पर्स्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट, एंड दैट इज डायरेक्ट स्टेटमेंट मेंशन्ड हियर। कोस्टल ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट ऑफ पर्स्पिरेशन। पर्स्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है with respect to wet bulb global temperature. So as per me, the answer should be 2 only. I am not sure about this question. Again, budget deficit, as I told you in the previous question, 368 page पे formulas लिखे हुए हैं. Just put in the values and you will be able to get the answer. Finance Commission, a very low hanging fruit question. 45% लिखा उन्होंने, नहीं भैया 41% है। ये एक स्टेटमेंट से you would have been able to eliminate, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है। अब बचा ही क्या, 1, 3 एंड 4, तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सोलर रूफटॉप पर टारगेट लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है कि स्किल कंपोनेंट होगा, एंड आई मेंशन बोथ कि टारगेट क्या है एंड देन स्किल कंपोनेंट। सूर्य मित्र जो सोलर पीवी टेक्नीशियन है जो कि स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, दैट आल्सो इज मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गवर्नर का स्टैटिक क्वेश्चन है। तुम लोग बोलोगे बट आई हैड कवर्ड दैट। क्यों कवर करा? क्योंकि भैया आर्टिकल आए थे, एज सिंपल एज दैट। सो एनीथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट इन न्यूज़पेपर इज पार्ट ऑफ माय नोट्स, whether it be sports, whether it be polity, whether it be history, any damn thing that is mentioned in newspaper and I find it important, that is part of my notes. अब इसमें ये मत बोलना आप तो पॉलिटी क्लेम कर रहे हो। भाई नोट्स में क्यों था? बिकॉज इट इज, आई वॉज एबल टू थिंक थ्रू इट कि ये पूछा जाएगा, तभी नोट्स में है, वरना नहीं होता नोट्स में। सो गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर्स वॉज क्लियरली मेंशन इन द नोट्स। उससे आप स्टेटमेंट 1 क्लियर कर लेते। एंड देन क्या लिखा है यहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजर्व अ बिल विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नर। आर्टिकल 200, 201 की क्लियर मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस दिए, दैट वाज पार्ट ऑफ नोट्स। रेड क्यों रखा है बता देता हूँ। जो भी रेड है मेरी कंपाइलेशन में, दैट मींस इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल ऑफ 2025। वो मैंने रेड फॉन्ट में करा था, सो दैट हु हैज ऑलरेडी रेड द 10 मंथ कंपाइलेशन, उसको नया टॉपिक आसानी से मिल जाए, वो रेड फॉन्ट मार्क पढ़ ले, इसलिए रेड हो रखा है यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 89, गवर्नर के क्वेश्चन आया था 361, एंड दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट आई हैड प्रेडिक्टेड। 361 प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2 कैन बी इजीली यूज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है करंट अफेयर से। क्यों? क्योंकि इस मूवमेंट के 100 साल पूरे हुए थे। And this even validates my idea that anything that completes 50, 75, 100 years automatically becomes important from prelims point of view. तो 100 ईयर पूरे हुए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, पेरियार जुड़े हुए, तो इनसे बहुत इजी क्वेश्चन था जो पूछा। आई होप ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 99, रैंडम क्वेश्चन देखो, और प्लेसेस इन न्यूज में कवर्ड था। चिली में यू हैव अटाकामा सॉल्ट फ्लैट्स, जहां पे लिथियम की माइनिंग हो रही है और सॉल्ट फ्लैट जो है कोलैप्स हो रहे थे। बोत्सवाना में 2492 कैरेट का डायमंड मिला था। इससे क्लियर हो गया कि इट इज नोन फॉर डायमंड्स। एंड इन इंडिया इंडोनेशिया relations, I had mentioned that Indonesia is key exporter of nickel. So all of the statements can be easily answered directly from the notes. ठीक है, if you want to join my free initiatives, I mentioned that as well. The link of this PDF is available in description, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। Now the questions, 9 questions that were partially covered in the notes somewhere or other. मैं बताऊंगा अभी partially से मेरा मतलब क्या है। So there was a question on इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के कैथोड्स के लिए कौन से यूज होते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे मिनरल्स लिखे हैं। अब मेरे नोट्स में क्लियर लिखा है ग्रेफाइट इज यूज टू मेक एनोड्स नॉट कैथोड्स। ग्रेफाइट कुड हैव बीन एलिमिनेटेड। निकल इज यूज्ड फॉर कैथोड, बस इतना ही लिखा है कि निकल है और ग्रेफाइट नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्लेम नहीं कर रहा। ठीक है, आंसर एज आई हैव बीन टोल्ड, आंसर इज 3 सी के बस ग्रेफाइट नहीं है, बाकी सब है। तो
मैं इसलिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पार्शियल है, दैट देयर वर 4 स्टेटमेंट्स, 2 कुड हैव बीन अराइव्ड एट फ्रॉम द नोट्स। प्लास्टिक पॉल्यूशन, सिगरेट बट्स याद है किसी को? कोई है जो एनवायरमेंट की क्लास अटेंड किया था और ये क्वेश्चन देख रहा है? सो आई हैड स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन दिस केस। मैंने बोला था यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट प्लास्टिक कंटेंट होता है सिगरेट बट्स में। मैंने कहा आई डिडंट नो इट बिफोर रीडिंग द नोट्स, अब मुझे आज पता चला है, तुम लोगों को भी शायद आज पता चलो, मैंने ऐसे बोला था और वो क्वेश्चन आ गया, देखो कि किसमें प्लास्टिक है। So cigarette butts is part of my notes, of course, that is on page number 404. Rest of the 2 statements were not part of the notes, hence मैंने claim नहीं करा है, मैंने बोला partially solve हो सकता है ये question. Then question number 8 on monoclonal antibodies. पहली लाइन ही क्या है? एक ही लाइन लिखी है मैंने, lab made proteins used in treatments of autoimmune disease, cancer treatment, etc. अब मैंने अगर वहां पे निपाह भी लिख दिया होता, बस मैं क्लेम कर लेता इस क्वेश्चन को, मैंने निपाह नहीं लिखा है था। सो स्टेटमेंट नंबर 1 वाज मैन मेड प्रोटीन, वो हो रहा है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू एबिलिटी टू बाइंड एंटीजेंस। ऑफ कोर्स यार, जब ट्रीटमेंट्स कर रहा है वो, तो सेकंड तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, मैंने इसलिए क्लेम नहीं करा क्योंकि निपाह का ट्रीटमेंट करता है नहीं करता है, दैट वाज नॉट मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, खो खो। ये भैया यूपीएससी, आई एम सॉरी टू से, मैं मॉड्यूल में भी बोलता था, एसएससी के लेवल से नीचे चला गया यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ के। पहला स्टेटमेंट ठीक है भाई, खो खो आप पूछो, बहुत बढ़िया, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप हुआ है, वो भी दिल्ली में हुआ है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग टू एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स? क्या हो जाएगा ये पूछ के? स्कोर लाइन पूछ रहे हैं और इन्होंने क्या करा है, मेन का स्कोर विमेन में लिखा है, विमेन का स्कोर मेन में लिखा है। So the statement number 1, that is Delhi, is mentioned in the notes. India men and women both won Kho-Kho, वो भी लिखा है, but then this score line was not mentioned because I had never expected UPSC to stoop so low कि वो score line पूछेगा। आप लोगों को पता होगा, मैंने सारथी के वीडियो में भी बोला था, and those who attended ethics with me would know that I am a cricket freak. Now I remember from 2024 World Cup, T20 World Cup, that South Africa had to chase 176 odd runs. अब आप क्या विकेट्स भी पूछोगे कि इंडिया की कितनी विकेट गिरी थी, उसकी कितनी गिरी थी, या उसको रिवर्स कर दोगे? तो ये तो भाई अलग लेवल पे चले गए, तो आई हैव नॉट क्लेम्ड दिस। देन क्वेश्चन नंबर 60 अगेन, सो बुकेश का मैंने क्लियरली पढ़ाया था क्लास में, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है, किसको हराया? आई हैव मेंशन दैट हैज बीन डिन लेरेन, सो ए कुड हैव बीन एलिमिनेटेड। अभिमन्यु मिश्रा बिकेम यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन 2021 while I was still in service. ठीक है, there is no way that I could have included this random thing in the notes. तो कायदे से मुझे क्लेम कर लेना चाहिए था ये क्वेश्चन, बट मैंने नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 61, rare earth metals are used for television monitors etc. because some of them have this property. अब मैंने लिखा है रेयर अर्थ मेटल पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, लाइटिंग के लिए यूज होते हैं, वो भी लिखा है। फॉस्फोरेन जो वो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लाइट प्रॉपर्टी ओनली, बट एज द वर्ड इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द नोट्स, आई हैव नॉट क्लेम्ड बिकॉज many of you would have got confused with this particular word. Next question is on Kavach. I am very sad that I missed out on this question. ठीक है, क्योंकि when you work so hard it feels really bad कि यार क्वेश्चन मिस हो गया है। सो कवच इज इंडिजिनस लिखा है, पहले ही वर्ड में लिखा है आर्टिकल के, ऑन पेज नंबर 355, बट देन द अदर 2 स्टेटमेंट्स वर नॉट पार्ट ऑफ द नोट्स। ये बहुत पुरानी पॉलिसी है एनआरपी, ये रीसेंट पॉलिसी नहीं है, सो इट इज कंटेम्परेरी अफेयर्स, नोट्स करंट अफेयर्स के। सो आई एम नॉट sad about missing out on this statement, but statement number 3 should have been the part of the notes, RFID tags वगैरह, and I have learned from this mistake already. I have analyzed the questions that I have nearly missed, narrow missed जो होता है, narrowly missed, मैंने analyze करे, I have found out the sources as well, and I have already started working on it कि मुझे next year और कैसे improve करना है, so that ये near misses ना हो। ठीक है, 64th question, again 2 of these aircrafts are covered in the notes, बस एक नहीं covered था। IL-76 I have clearly mentioned that it is a transport category aircraft, heavy lift aircraft, जिसको MTA replace करेगा।
Similarly, C-17 is a transport aircraft I have mentioned. So you could have arrived at answer, but Dornier मैंने mention नहीं करा है notes में, इसलिए I have not claimed this question. लेकिन मैं Last question number 100. Mallorca was part of notes because there was international conference on election management bodies. तो Mallorca Spain में है, but other two statements were not part of the notes, so I have not claimed. Apart from these 37 questions, there were some near misses as well. For example, set A में question number 15. Now I've changed the set. वो set B था, ये set A है. So set A में question number 15 came on Fahim. Now Hyun Sang is part of my notes. So I've learned that historical figures who are always named together like Hyun Sang, Fahim, एक साथ नाम लिया जाता है, तो उसको मुझे पढ़ा देना चाहिए. So it is not part of the notes. NATO, भाई बहुत near miss है. I have taught NATO. I even remember the article NATO at 75. You could find in the compilation. But I have mentioned in the notes that there are now 31 members in NATO. और मैंने क्लास में भी बोला था कि मैंने members क्यों नहीं लिखे हैं ऐसे NATO के या OIC के members क्यों नहीं लिखे, because OIC has 57 countries, NATO has 31. मैंने कहा यार UPSC ये थोड़ी पूछेगा how can aspirants remember 31 countries कि कौन member है कौन नहीं है, but they have asked this question now. So now मैं तो डाल दूं अगले साल से नोट्स में. ओनस तुम लोग पे है कि तुम्हें रटना पड़ेगा, वो इतने घटिया क्वेश्चन पूछे. Tanganyika was part of my notes, but there were two other lakes as well, so I have not claimed this question. Activated carbon is part of my notes. Question number 50 dealt with activated carbon, but static portion मैंने नहीं डाला था. एक लिमिट होती है, करंट पढ़ाते जाओ फिर स्टैटिक डालने की एक लिमिट होती है, थक जाता है इंसान कि यार कितना डाल दिया. कंपाइलेशन भी तो कंसाइज देनी थी, तो पेजेस नहीं बढ़ाने हैं ज्यादा. बट आई मिस्ड आउट ऑन दिस, सो आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मिस्टेक. फिफ्थ शेड्यूल वाज पार्ट ऑफ माय नोट्स, बट स्टैटिक वाज आल्सो पार्ट ऑफ द नोट्स, बट जो क्वेश्चन उन्होंने एग्जैक्ट पूछा वो स्टेटमेंट्स नोट में नहीं थी. कवच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. माइक्रोग्रेविटी, सो आई हैव टॉट यू स्पेडेक्स, आई हैव टॉट यू द अदर टू मिशंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एज वेल. पोएम था या स्पेडेक्स, कौन सी 3 मिशन थी मैंने पढ़ाई है तीनों, बट माइक्रोग्रेविटी का रेफरेंस उसमें नहीं था, तो वो मिस हो गया. आर्टिफिशियल रेन, आई हैड टॉट यू पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन 21 पॉइंट एक्शन प्लान इन डिटेल दिल्ली गवर्नमेंट को जो था. वन ऑफ द पॉइंट इज आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग, बट उसमें क्लाउड सीडिंग किस मिनरल से होता है, इतना लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन, वो नोट्स का पार्ट नहीं था. सो वेरी सैड टू मिस आउट ऑन दिस क्वेश्चन. पार्डन आई हैव टॉट यू, मैंने पार्डन का करंट अफेयर और स्टैटिक लिखा था. मर्सी एंड पिटिशन करके एक सर्च करोगे, मर्सी एंड पिटिशंस करके यही टाइटल है न्यूज का, यू विल सर्च, यू विल फाइंड दिस इन द नोट्स. बट द स्टैटिक पोर्शन दैट वाज आस्क्ड along with that basic information was not part of the note, so I have to add more static. Similar with Lokpal, question number 98. I have taught Lokpal, I have taught you Lokpal's performance. मैंने उसमें लिखा होता PM, इस PM को आप PM के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, ग्रुप ए ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, बट द अदर स्टेटमेंट वाज नॉट कवर्ड इन द नोट, सो आई हैव नॉट क्लेम दैट. सो अगर मैं इन 10 क्वेश्चंस को भी इंप्रूव कर लेता, मटेरियल होता, maybe I would have been able to help you even better manner. ठीक है, so these were the references. Those who had gone through the compilation, please mention the same in the comment section. How many questions you were able to answer in prelims 2025 using that compilation? Thank you.